We worship you, we adore you, we glorify you. We magnify you, Jesus. धन्यवाद यीशु, हम आपकी We आराधना magnify करते you, हैं। Jesus. आपके We नाम को ऊंचा magnify you, उठाते हैं प्रभु। Jesus. आपके नाम को We ऊंचा magnify उठाते you, हैं। Jesus. We आपके नाम को magnify ऊंचा you, उठाते हैं। Jesus. आपके नाम को ऊंचा We उठाते हैं। glorify you, Jesus. आपकी महिमा The करते हैं। name that is above every name. वो The नाम जो हर name नाम that is से above ऊपर है। every वो name. नाम जो हर नाम से ऊपर है। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता। Father, we come before you in Jesus' name. पिता, हम आपके सामने यीशु के महान नाम में We आते bring every thought, every intention, our hearts. We just surrender at your feet. हैं। अपना हर एक विचार, हर एक मकसद, अपना हृदय आपके चरणों में रख देते हैं। And we say, speak to us, Lord. और हम कहते हैं, हमसे बात करें पिता। Thank you, Lord, that everyone who is sitting here with great expectation, and they have listening ears and a heart that understands. धन्यवाद पिता, जो कोई यहाँ मौजूद है, यहाँ उपस्थित है प्रभु, वो एक महान आशा के साथ आया है और उनके सुनने के कान हैं और एक ऐसा हृदय है जो आपसे बड़ी आशा लगाए बैठा है। Thank you, Father, that the word preached today will accompany with many signs and wonders in the name of Jesus. धन्यवाद पिता, जो वचन आज भेजा जा रहा है वो कई चिन्ह और चमत्कारों के साथ साबित होगा। For your word which is sent, Lord, does not come back void. क्योंकि आपका वचन जो भेजा जाता है कभी खाली वापस नहीं लौटता। In Jesus' name. यीशु के महान नाम में Amen. आमेन। Come on, say this. I am ready to receive. बोले, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। Amen. All right, you all can be seated, please. आप लोग बैठ सकते हैं। So, as you can see, we have a beautiful wallpaper of this knight, this warrior, this king. और आप देख सकते हैं कि एक योद्धा का, एक राजा का खूबसूरत चित्र बनाया है यहाँ पे। And the message today is learning to rule and reign. और जो संदेश है आज का वो ये है कि हम सीखें कैसे राज्य और प्रभुता करनी है। Because that is our original design. We were always created to be rulers. क्योंकि ये हमारा बनाए जाने का मूल मकसद था, हम बनाए गए थे इसलिए ताकि हम राज्य और प्रभुता करें। And that's your Father's desire, that there will be absolutely nothing that has dominion over you, but your Father's desire is that you will have dominion over everything that comes against you. और आपके पिता की यही इच्छा है कि कोई भी बात आप पर हावी ना हो सके, लेकिन हर एक बात जो आपके विरोध में आती है उसको अपने वश में आप कर लें। Amen. That's why knowing Jesus is not knowing a religion. Knowing Jesus is knowing your original design. इसीलिए यीशु को जानना किसी धर्म को ग्रहण करना नहीं, लेकिन अपने उस असली, अपने वास्तविक बनाए जाने के मकसद को जानना है। Jesus undid what Adam did in the garden. आदम ने जो बगीचे में गलती करी, यीशु ने उस गलती को उल्टा करके सब कुछ वापस लौटा दिया मनुष्य को। Amen. So he has brought us to that place in the garden where we can again have dominion and rule and reign. तो वो वापस हमें उस जगह पर ले आया है, उस बगीचे में जहां पर दोबारा हम राज्य और प्रभुता कर सकते हैं। And one of a very misunderstood subjects in the church today is the sovereignty of God. और कलीसिया में जो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय है जिसको बहुत गलत समझा गया है, वो है परमेश्वर की स्वेच्छा। So what people think is, if God wants to bless me, He will bless me. If God wants to ignore me, He'll ignore me. If God wants, God is doing whatever He wants on this earth. और कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अगर परमेश्वर को मुझे आशीष देनी है तो दे देगा, अगर मुझे नजरअंदाज करना है तो कर देगा। पृथ्वी पे जो होता है उसकी मर्जी से होता है। Oh, I'm just a worm on the earth. If He wants to heal me, He will heal me. If He doesn't want to heal me, He will not heal me. कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मैं तो एक कीड़ा हूँ पृथ्वी पर, अगर उसको मुझे चंगा करना होगा तो करेगा, नहीं करना वो तो नहीं करेगा। Or maybe if I'll fast enough, I'll come in that pitiable situation and Lord sees me, maybe He will have compassion and mercy on me. और हाँ, अगर मैं उतना लंबा उपवास कर लूँ कि परमेश्वर को मुझ पे दया आ जाए तो शायद मुझ पे दया दिखा देगा। And these kind of prayers tell us that we don't know who we are. और इस तरह की प्रार्थनाएं हमें बताती हैं कि हम नहीं जानते हम कौन है। And we don't know what we were created to be. और हमें नहीं पता हम क्यों बनाए गए थे, किस लिए बनाए गए। If you read chapter 1 of Genesis, the word there for God is Elohim. अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो जो शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है एलोहीम।
And if you see the root of that word, it has to do with supreme ruler. और एलोहीम शब्द की जो जड़ है, जो मूल शब्द है, उसका मतलब है जो सबसे महान राजा है. But if you read in the Bible, Elohim is also used for men. Elohim is also used for kings, for rulers. लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो एलोहीम शब्द का इस्तेमाल बाइबल में ऐसे दूसरे राजाओं के लिए भी किया गया. Amen? And that's what God created us to be, a ruler, और ये है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, एक राजा, a king. एक राजा. Adam was created. You know, who wears the crown? Tell me. आप बताइए कौन मुकुट पहनता है? Who wears the crown? King, right? And the Bible says in the book of Psalms that when he made man, he crowned him with glory and with honor. और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को आदर और महिमा का मुकुट पहनाया. So when God created man, the first thing God did was God crowned man with glory and honor and delegated his supreme authority to man. तो पहला काम जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद किया वो ये था कि उसने मनुष्य पर आदर और महिमा का मुकुट उसको पहना दिया, उसको ताज पहना दिया आदर और महिमा का, और वो अधिकार जो परमेश्वर के पास था वो मनुष्य जाति को दे दिया. That's what many people don't understand. You are so much more powerful than you think you are. यही बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जितना आप सोचते हैं उससे कई ज़्यादा. In fact, in God's sovereignty, यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपनी मर्जी के मुताबिक made you a sovereign being. Man is a sovereign being because God is a sovereign being. परमेश्वर ने अपनी मर्जी से आपको सुइच्छा दे दी ताकि आप अपनी मर्जी से जी सकें. That's why, yes, God is a sovereign being and whatever he wants, he does. And you also are a sovereign being and whatever you want to do, you do. हाँ, परमेश्वर भी अपनी इच्छा से जो चाहता है वो करता है. इसीलिए आप भी जब बनाए गए तो उसने अपने स्वरूप में आपको बनाया, आप भी अपनी मर्जी से जो चाहे वो Now कर please सकते हैं. understand my heart. God is sovereign. इस बात- He is supreme. मेरे दिल को समझना, हाँ परमेश्वर सुइच्छा से जीता है और वो सबसे महान है. But in his wisdom, लेकिन अपनी बुद्धि में, because he made us to be kings and rulers, क्योंकि उसने हमें राजा बनाया, राज्य करने के लिए बनाया, he gave us so much authority उसने इतना ज्यादा अधिकार हमें दे दिया that you can even limit him from blessing you. कि आप परमेश्वर पे भी सीमा लगा सकते हैं कि वो हमें आशीष दे पाए या ना दे पाए. Can you hear? Did you hear what I आप said? सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? So if I can tell you this way, तो अगर मैं ऐसे कहूँ, in God's sovereignty, परमेश्वर ने अपनी मर्जी के मुताबिक he made you sovereign उसने आपको स्वेच्छा दे दी and delegated such power with you और ऐसा अधिकार, ऐसी शक्ति उसने आपको दे दी that you can completely block him from your life कि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी से बिल्कुल अलग कर सको, and he will have to honor that boundary. और परमेश्वर को उस सीमा का आदर करना पड़ेगा. God honors the boundary that man puts on him. परमेश्वर उस सीमा का आदर करता है जो मनुष्य उसके लिए लगाता है. That means इसका मतलब even though God wants to bless you, but if you don't want to do anything with God, his power will not work in your life. हालांकि परमेश्वर आपको आशीषित जीवन देना और उस जीवन में चलते हुए देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको रोक दे, आप चाहे कि उसका आपके जीवन से कोई लेना देना ना हो, तो वो सीमित हो जाएगा. It's like, what? और कहेंगे This is unlike anything I've heard because God is in control, brother. क्योंकि ये तो बहुत अलग है जो मैंने सुना है उस सबसे कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में करके बैठा है. But the reality is, हकीकत तो ये है God doesn't want to control. परमेश्वर नियंत्रित करना ही नहीं चाहता. God wants to teach you so that you can control through his spirit. परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा कैसे आप नियंत्रण में जीवन को जिएं. God wanted to control, he would have control in the garden. परमेश्वर अगर नियंत्रण में रखना ही चाहता तो बगीचे में ही नियंत्रण में कर लेता.